Hello students, in the last two class, I have told you what is quadrilateral, what are the parts of quadrilateral, what is different type of quadrilateral. Also I have told you the angle sum property of a quadrilateral, the sum of all the four interior angle, the sum of all the four interior angle of a quadrilateral is 360 degree. After it I have told you, in the last class I have told you different type of theorem. Theorem number first, a diagonal of a parallelogram divided into two congruent triangle. In a second, in a parallelogram opposite sides are equal. Theorem third, if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. Theorem 4, in a parallelogram opposite angles are equal. Theorem 5, if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, then it is a parallelogram. Theorem 6, the diagonal of a parallelogram bisect each other. Theorem 7, if the diagonal of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. And theorem 8, I have told you that a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel. I have also explained some example given before, exercise 8.1. In today's class we will start exercise 8.1. So see the first question. These all questions depend upon the theorems. The first one, the angle of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angle of the quadrilateral. This question is from class 7 and 8 you have done. Okay, so what you have to do, the ratio is given. First you have to let the angles are 3x, 5x, 9x and 13x. Okay, now we know that sum of all the angle of a triangle is 180 degree and sum of all the angle of a quadrilateral is 360 degree. Now this is 5, 3, 8, 9, 8, 17, 17 and 13, 30x is equal to 360. Then x you can find 360 upon 30, 0, 0 cancel, this is 12, x equal to 12. So 3x is equal to 3 into 12, that is 36 degree. 5x is equal to 5 into 12, that is 60 degree. 9x is equal to 9 into 12, that is 108 degree, all in degree. And 13x is equal to 13 into 12, 156 degree. Okay, now you have to check, if you want to check, the sum of these four angles is 360 degree. 8, 6, 14, 14, 6, 20, 0, carry 3, 6, 3, 11, 8, 6, 14, 14, 6, 20, carry 2, this is 5, 2, 7, 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 6, carry 1 and 1, 1, 2, 1, 3. This is the solution of the first question. Okay. Now see second question. If the diagonal of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. Diagonal of a parallelogram are equal. It is given that a parallelogram in which diagonals are equal. It is the property of a rectangle also. This is a parallelogram in which it is given the diagonals are equal. Okay, so what you have to do? You have to prove this triangle and this triangle congruent, because this side is equal to this side, parallelogram opposite side are equal and this side is common. After proving congruent, you have to show these two angles are equal, but these two angles, the sum of these two angles is 180 degree, therefore each angle measure how much? That is 90 degree. Again I am repeating, in each of the question you have to write the given, to proof and after it proof. Okay, I will send you the PDF, but before solving from the PDF
you can see how the questions will be solved. Okay, now see question number 3. Similarly, I will show you how to solve the questions. So that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. This is also a property of rhombus. In a rhombus, diagonals bisect each other at right angle. So third number question. If the diagonal of a quadrilateral bisect each other, suppose this is a rhombus, or you can draw like this. So this is a quadrilateral ABCD in which diagonal AC and BD bisect each other at 90 degree. You have to show that this is a rhombus. तो rhombus में क्या होता है, अपोजिट साइड्स, तो पैरेललोग्राम पहले प्रूफ करना होगा, पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा तो अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएंगी और उसके बाद से चारों साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो कैसे होगा, पहले आप इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे, अपोजिट ट्रायंगल्स को, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. ओके, तो जब ये अल्टरनेट एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, जब पैरेलल हो गया तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगी और ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, इसके बाद से आप इन दो ट्रायंगल को ले लोगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, किसी भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल को लोगे. ठीक है, अब किसी भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल को जब आप लोगे तो क्या होगा, इन दोनों को जब आप इक्वल प्रूफ करोगे तो ये दोनों साइड, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे इन दोनों को, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी और ये साइड इसके इक्वल है ही और ये साइड इसके इक्वल है ही, तो ये चारों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. तो इस फिगर में आपको ये प्रूफ करना होगा क्वेश्चन नंबर 3 में कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड ऑफ ए दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल. ओके, तो पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज ए rhombus. Okay, now 4, come to question number 4. So that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. Diagonal of a square are equal, तो एक स्क्वायर बनाएंगे नंबर 4 में. Diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. तो जब इक्वल प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ये लेंगे पूरा, ओके, और एक ये दूसरा ट्रायंगल लेंगे. ठीक है, तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी है ही, स्क्वायर है तो ये दोनों साइड इक्वल हो ही जाएंगी और ये कॉमन हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा हम इस साइड्स को इक्वल दिखा देंगे, ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो डायगोनल इक्वल हो गया और डायगोनल जब इक्वल हो गया, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर, तो क्या करेंगे, इसके लिए इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो ये साइड देखिए कॉमन हो गई, ये so that the diagonal of a square are equal and bisect each other. सॉरी, तो डायगोनल इक्वल हो गए और बाइसेक्ट ईच अदर के लिए ये अपोजिट एंगल, आप अपोजिट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे. ठीक है, कैसे, देखिए, अब इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो ये एंगल इसके बराबर, जैसे आप पैरेललोग्राम प्रूफ करते थे, ये एंगल इसके बराबर, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो ए से ये कॉन्ग्रुएंट होगा और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा उसके बाद से ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर हो जाएगी. आई बात समझ में, तो ये हो गया आपका. और 90 डिग्री के लिए क्या करना है, 90 डिग्री के लिए आपको दो एडजेसेंट ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा. तो ये दोनों एंगल जो है इक्वल आ जाएंगी, बट दीज मेक्स लीनियर पेयर, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री की होंगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. So that if the diagonal of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. अब फोर्थ का ही कन्वर्स फिफ्थ है. डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज ए स्क्वायर. अब ये प्रूफ करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है
क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं जो इसमें हमने प्रूफ किया वो सब इसमें इक्वल दिखा गया है। डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें ये दोनों डायगोनल भी इक्वल है और ये इसके जो हाफ हाफ पार्ट है ये भी आपस में इक्वल है। तो आपको ये प्रूफ करना है ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इस फिगर में ये दिखाना है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल दिया गया है तो आपको एक पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कैसे दिखाओगे, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो जब पैरेललोग्राम दिखाना है तो पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। ठीक है, एक थ्योरम हमने आपको बताया था, याद करिए, ये थ्योरम में था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। देखिए, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो जब ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, और जब पैरेललोग्राम हो गया तो उसे हमें क्या दिखाना है, अब स्क्वायर दिखाना है। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में एक एक एंगल को आपको पहले 90 डिग्री दिखाना है। इसके लिए एडजेसेंट एंगल को, ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। और जब एडजेसेंट एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो उसके बाद से आपको सभी साइड्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए इन दो ट्रायंगल को आपको फिर कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, और कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल है ही, एडजेसेंट साइड भी जब इक्वल हो जाएगी तो ये चारों साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect angle A so that it bisect angle C also and ABCD is a rhombus। अब देखो ये फिगर है आपका। अब इस फिगर में क्या दिया हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, जाहिर सी बात है। इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे ये एंगल है, मान लो इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। 1 के बराबर 3 है और 2 के बराबर 4 है। ठीक है, तो 1 और 2 आपस में बराबर है तो 3 और 4 भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 1 3 और 2 इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू 4। इफ 1 एंड 2 इज इक्वल देन 3 एंड 4 इज ऑल्सो इक्वल। ओके, अब ABCD को रोम्बस दिखाना है, तो रोम्बस दिखाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये साइड इसके बराबर हो जाएगी और अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल है ही, तो ये चारों साइड आपस में बराबर होगा, ये ABCD एक रोम्बस हो गया। ठीक है, 7 नंबर देखिए, ABCD इज अ रोम्बस सो दैट AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। कुछ नहीं करना है, जैसे ABCD में ये एक AC डायगोनल तो है ही, ये जैसे प्रूफ हुआ वैसे ही ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। और एक BD डायगोनल ड्रॉ करोगे, यहाँ से B से लेकर D तक एक डायगोनल ड्रॉ करोगे, तो उसमें भी प्रूफ करना है कि जो BD डायगोनल है एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C so that ABCD is a square, diagonal BD bisect angle B as well as angle D। इसमें कुछ नहीं है, जैसे 7 है, BD एक डायगोनल यहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक इसी तरह यहाँ भी एक डायगोनल ड्रॉ करके BD को एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको शो करना है, और ABCD स्क्वायर शो करना है। तो ABCD ऑलरेडी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल होते हैं, स्क्वायर में भी सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं। बस ये प्रूफ कर देना है कि ABCD के चारों साइड्स जो है आपस में इक्वल है। तो इसी तरह दो ट्रायंगल को लेके एडजेसेंट साइड्स को हम इक्वल दिखा देंगे, और ऑलरेडी अपोजिट साइड इक्वल है ही, तो चारों साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और ईच एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ABCD एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। नाइन देखिए, इन ए पैरेललोग्राम ABCD
2 points P and Q are taken and diagonal BD such that DP equal to BQ so that APD और CQB, देखो यहाँ APD ये है ट्रेंगल और CQB ये ट्रेंगल है, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये दोनों छोटे ट्रेंगल को, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो APD और CQB कैसे प्रूफ होगा, ये एक पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड ये क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है। जब पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरी साइड क्या दिया हुआ है, DP इक्वल टू BQ, DP और BQ ऑलरेडी इक्वल है ही, ठीक है। DP और BQ ऑलरेडी इक्वल दिया गया है, तो जब DP और BQ इक्वल है तो ये हो जाएगा आपका SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट होगा हम लिख देंगे AP इज इक्वल टू CQ CPCT। फिर AQB और CPD को करना है, AQB और CPD को करना है, इन दोनों को भी उसी मेथड से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगी और ये ऑलरेडी इक्वल है, DP इक्वल टू BQ, ठीक है। उसके बाद से AQ इक्वल टू CP, AQ इक्वल टू CP हम दिखा देंगे CPCT से, तो ये दोनों भी इक्वल हो गया, ये दोनों भी इक्वल हो गया, ठीक है। अब APCQ एक पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम कैसे दिखाएंगे, अब देखो जब ये लाइन को ज्वाइन करेंगे AC को, तो AC में क्या होगा, ये OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि ADCB ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OA इज इक्वल टू OC ऑलरेडी होगा ही, और OB इज इक्वल टू OD होगा। फिर इसमें दिया गया है DP इज इक्वल टू BQ, तो OB में से BQ को माइनस करोगे तो OQ बचेगा, और OD में से PD को माइनस करोगे तो OP बचेगा, तो ये भी इक्वल हो गया और ये भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर APCQ इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेज A एंड C ऑन डायगोनल BD so that APB is congruent to CQD, APB is congruent to CQD। ये दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये दोनों एंगल ये CDQ और ABP ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज ए पैरेललोग्राम, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और एक साइड अपोजिट इक्वल हो गई, तो AS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद AP इज इक्वल टू CQ, तो AP इक्वल टू CQ CPCT से, ठीक। अब 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ABC ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DEF AB इज इक्वल टू DE, देखो AB इज इक्वल टू DE दिया हुआ है एंड AB पैरेलल DE। पहला क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम, तो हमने एक थ्योरम बताया था 8.8, उसमें लिखा हुआ था कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो देखो AB इज इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल DE, AB और DE इक्वल भी है, AB और DE पैरेलल भी है, तो क्या हो गया ABDE इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अगेन BC इज इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल EF, BC इज इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल EF, तो ये क्या हो गया BCFE AB एक पैरेललोग्राम हो गया, तो ये दूसरा भी सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ AD पैरेलल CF और AD इक्वल टू CF प्रूफ करना है, AD पैरेलल CF एंड AD इज इक्वल टू CF प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, ये एक पैरेललोग्राम हुआ, तो ये और ये साइड क्या हो गई, इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई। फिर ये एक पैरेललोग्राम हुआ BCFE, तो ये दोनों साइड इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई, ये दोनों भी इक्वल पैरेलल और ये दोनों भी इक्वल पैरेलल, तो ये दोनों साइड AD और CF ये क्या हो गई, इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई। जैसे ही ये इक्वल और पैरेलल हुई ADFC एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब जब ये ADFC एक पैरेललोग्राम हो गया तो AC इज इक्वल टू DF हो गया, ये हमारा पांचवा भी सॉल्व हो गया। अब ट्रायंगल ABC और DEF को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखना है, तो AB इज इक्वल टू DE गिवन है, BC इज इक्वल टू EF गिवन है और AC इक्वल टू DF हमने अभी दिखाया, तो SSS से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD is equal to BC. AB parallel CD and AD is equal to BC, so that angle A is equal to angle B. तो ध्यान दीजिए, इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया गया है, AB को एक्सटेंड किया गया और C से एक लाइन ड्रॉ की गई जो कि E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस एट E. AD इज इक्वल टू BC है, ये ध्यान दीजिएगा, AD इज इक्वल टू BC. अब जब ये पैरेलल हो गया बेटा, ये C यहाँ दिया हुआ है पैरेलल टू DA, DA के पैरेलल है, मतलब ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई. और ABCD एक ट्रापेजियम है, तो ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया ना. पैरेललोग्राम जैसे ही हुआ तो AD और C इक्वल हो गया, और AD और BC ऑलरेडी इक्वल दिया गया है. इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई. ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, नाउ अब ध्यान दीजिए, एंगल A और E इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री. तो A निकालेंगे तो कितना होगा, 180 माइनस E. A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस E, एंगल E, ठीक है. अब जब 180 माइनस E हो गया, E इक्वल टू B हो गया, E इक्वल टू B भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल CBE, CBE हो सकता है किसके बराबर, एंगल A के बराबर. ठीक इसी तरह एंगल B के इस साइड और इस साइड ये दोनों 180 डिग्री का है, तो एंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस CBE, CBE हो जाएगा ये एंगल. अब देखो 180 माइनस CBE A की भी वैल्यू हो गई और 180 माइनस CBE B की वैल्यू हो गई, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना. अब जब A और B इक्वल हो गया तो देखो A प्लस डी भी 180 डिग्री, B प्लस सी भी 180 डिग्री, A और B इक्वल है तो C और D भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. इसके बाद से दिया गया ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD, यहाँ से एक मिलाओगे, यहाँ से एक मिलाओगे, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD. ये दोनों साइड इक्वल है ही, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया और ये कॉमन हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया. और कॉन्ग्रुएंट जैसे ही होगा तो AC एंड BD ये डायगोनल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये हमारा फोर्थ भी प्रूफ हो जाएगा. ओके, सो इन टुडेज क्लास यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to question number 12 of exercise 8.1. I hope you have understand all the things what I have explained. I will send some PDF. With the help of that PDF you have to solve all the question of 1 to 12. Okay, thank you, have a nice day.